Good evening, students. So let's start the last chapters of the subject, that is working with the files. So these chapters, we are going to learn the different what is the class for files, system operations, how to open and close that files, then detecting and end of the files, then open commands, files, different files modes, file pointer and their manipulators, sequential input and output operations, and random access, and the error handling during the file operation and command line argument. So in a real life examples, we can handle many problems or a large volume of data, and in such a situation, we need some device such as floppy disks and hard disks to store the data. Okay, तो अभी floppy वगैरह यूज नहीं करते हैं, mostly SSD यूज करते हैं, hard disk भी अभी reduce हो गया है usage उसका. Okay, so the data is stored in this device are using the concept of files. Yes. So डेटा क्या होता है कि द डेटा कैसे स्टोर होता है, सो डिवाइस में स्टोर होता है और उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम लोग फाइल्स बोलते हैं. तो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑन द डेस्क. ओके, रिलेटेड डेटा अभी फॉर एग्जाम्पल बोला कि पेशेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, दैट कैन बी स्टोर इन द वन फाइल. देन एम्प्लॉय रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर इन अ वन फाइल, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड पर्टिकुलर फाइल्स हम लोग जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, और हम लोग उसको क्या करते हैं, हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हैं. ओके, सो दिस इज अ concept of a files. Okay, so it is a collection of related data and store on the disk. So program can be a design to perform the read write operation on these files. Of course अभी हम लोग को क्या करना है, फाइल क्रिएट करना है, फाइल के अंदर डेटा लिखना है और फाइल को क्लोज करना है. अगेन वी हैव टू जो डेटा लिखा है उसको रीड करना है, मतलब रीड एंड राइट, ये दो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं ऑन द फाइल. The program typically involves either or both of the following two kinds of data communication. First one is the data transfer between the console unit and the program, and the second is the data transfer between the program and the disk file. Okay, so ये जो ट्रांसफर ऑफ रहेगा, डेटा ट्रांसफर रहेगा, वो पहले किस में होता है, कंसोल एंड द प्रोग्राम के बीच में होता है, एंड सेकेंड थिंग किस में होता है, प्रोग्राम एंड द डिस्क फाइल के बीच में रहेगा. तो इसका मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ. जस्ट होल्ड ऑन, आई एम ओपनिंग दैट फाइल्स. So this is the diagram for that console program file interactions. Okay, so this is the basic operation. तो आप दो चीजें यहाँ पे देख सकते हो, that is a program file interaction, जो data and data files and program के बीच में होता है. Okay, that will be are connected with the external and internal memory. So write data using the cout, and जो नीचे वाला जो यह है, that is a console program interaction. So that will be happen between this console, मतलब जो आपका desktop keyboards रहेगा, that will be a like screen. Okay, एंड वो कनेक्टेड होता है विद द प्रोग्राम प्लस डेटा. ओके, मतलब सी आउट से वो डेटा आपको डिस्प्ले होगा फ्रॉम द प्रोग्राम्स. ओके, एंड जो डेटा है दैट विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल मेमोरी, दैट इज डेटा फाइल्स. ओके, दैट डायग्राम विल बी शोन विद दिस कनेक्टेड. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, जो इंटरनल मेमोरी रहता है उसमें से क्या होता है, डेटा को मतलब राइट किया जाता है, राइट डेटा टू फाइल्स. तो ये और एरो दिखाई दे रहा है आपको, डेटा फाइल्स के पास जा रहा है. फिर डेटा फाइल से फिर एक एरो आ रहा है, वो अपने इंटरनल मेमोरी की तरफ आ रहा है, जिसमें हम लोग प्रोग्राम और डेटा रहेगा. So that can be called as a read data from the files. Okay, after उसके बाद क्या होता है, ये डेटा हम लोग का कंसोल के पास जाएगा. Okay, using the cout. Okay, and through the keyboard we will get the data from the keyboard. कीबोर्ड से हम लोग डेटा एंटर करेंगे, and that will be from internal memory to the external memory, store in the data files. Okay, so this is a diagrammatic representation of a console program file interaction. ओके, तो इसमें हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हाँ डेटा हैंडल कैसे करते हैं, एंड दैट कम्युनिकेशन बिटवीन दिस कंसोल एंड द प्रोग्राम. सो हियर इन दिस टॉपिक वी आर लाइक डिस्कस वेरियस मेथड्स अवेलेबल फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग द डेटा फ्रॉम द फाइल्स. ओके, उसके बाद और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, दैट विल बी रिलेटेड फॉर द IO. सो दिस इज द डायग्राम. तो यहाँ पे फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, तो डिस्क फाइल एंड प्रोग्राम है. तो जहाँ पे डिस्क फाइल है, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, एंड प्रोग्राम होता है जो रीड करता है डेटा फ्रॉम द डिस्क फाइल एंड राइट करता है टू द डिस्क फाइल. ओके, मतलब फाइल से रीड करना है और फाइल में स्टोर करना है. सो रीड द डेटा फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम, वहाँ पे इनपुट स्ट्रीम यूज होता है फॉर रीडिंग द डेटा फ्रॉम द डिस्क. ओके, एंड आउटपुट स्ट्रीम यूज होता है फॉर राइटिंग द डेटा टू द फाइल्स. ओके, so in the IO system, the C++ handle the file operation which will vary much. Okay, similar to the console input output operation. So it uses the file stream as an interface between the program and the file. So the stream that supply the data program
इज नोन एज इनपुट स्ट्रीम। मतलब जो डेटा सप्लाई करता है उसको इनपुट स्ट्रीम बोलते हैं। ओके, और जो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और यू कैन से दैट रिसीव द डेटा फ्रॉम द प्रोग्राम इज नोन एज आउटपुट स्ट्रीम। और एक डायग्राम में शो कर रहा हूँ इसके आगे, वो भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। So this is the classes. So now it is visible. Okay. So this is the classes for a file stream जहाँ पे हम लोग IO system input output operation perform देखने वाले हैं, and उसके अंदर set of classes है that define the file handling method. So this include the if stream, input stream, input file stream, if stream बोला है उसके if stream. Okay. And then output OF stream and F stream. So these classes are derived from the FStream base and from the corresponding IOStream class that will be shown in this diagram. So these classes designed to manage the disk file are declared in the FStream, and therefore we must include this file in the any program that uses the files. Okay. So जो ऊपर वाला पार्ट है हम लोग उसको IOStream बोलेंगे, IOStream फाइल, एंड जो नीचे वाला है दैट इज FStream फाइल्स होते हैं। ओके, जो इसमें if stream है, input file stream है, जस्ट FStream है, OF stream है एंड फाइल बफर है। ओके, इन दैट जो है FStream बेस है जहाँ से उसको इनहेरिट किया जाता है। ओके, हम लोग ने इनहेरिटेंस पढ़ा है। ओके, सो दैट विल बी कमिंग फ्रॉम द iOS इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल्स। ओके, iOS फाइल से वो इनहेरिट किया जाता है टू द FStream बेस। उसके बाद FStream बेस, OF stream बेस एंड द फाइल बफर है। ओके, तो उसमें हर एक चीज कनेक्टेड विद द E stream, then stream buffers, OS stream and IOStream classes. So these are the classes that can be inherited in our code. For that you have to use like मतलब उसके फीचर्स यूज करने के लिए हम लोग ये फाइल स्ट्रीम की क्लासेस यूज करेंगे इन द C++ प्रोग्राम। ठीक, अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट फाइल ऑपरेशंस है, उसमें से बेसिक फाइल ऑपरेशन कौन से लाइक क्रिएटिंग एंड ओपनिंग अ फाइल, रीडिंग द फाइल्स, राइटिंग टू अ फाइल्स एंड क्लोजिंग फाइल्स। ओके, तो उसके अंदर कुछ फंक्शंस है, हर एक फंक्शन दिया है, ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन अवेलेबल अंडर द फाइल ऑपरेशंस। तो इसमें fopen is used for the opening of file, fclose for close the file, put c write a character to the file, put c same as a put c character, get c, then fget c है same as get c, then उसके बाद fgets read the string from the files, fputs write the string to the files, fseek the bytes in the file। okay, उसके बाद देखो ftell वाला है return the current file position, फाइल का पोजीशन बताएगा, fprintf what printf is to be console, fscanf, okay, end of the files, EOF, return true if the end of the file is reached, if error, return the true if the error has occurred, rewind, reset the file position indicator to the beginning of the files, remove है, erase the files, flushes the files। okay, so these are the different functions are available in this file operations। तो उसमें से first one is like you can say the out files। okay, so creating opening of files for text file syntax OF stream out myfile.txt, मतलब ये txt फॉर्मेट में रहेगा। तो outstream.out.open the file for the reading and writing purpose। okay, ये ओपनिंग का फाइल रहेगा। तो टेक्स्ट फाइल रहेगा तो आपको txt फॉर्मेट में यूज करना है। ओके, एंड बाइनरी फाइल रहेगा तो यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ दैट फाइल एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन द बाइनरी फॉर्म। ओके, तो इसके अंदर आगे आपको उसको मेंशन करना है कौन से इसमें आप उसको ओपन कर रहे हो। ओके, उसके बाद फॉर ओपनिंग अ टेक्स्ट, यस लाइक यू कैन टेक्स्ट फाइल सिंटैक्स OF stream out, जिसके अंदर आप फाइल नेम रहेगा, आपका वो पैरामीटर्स रहेगा। ओके, और यू कैन आल्सो यूज दैट OF stream out क्लासेस। तो इसके अंदर आप कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हो फाइल ऑपरेशन के अंदर, जिसमें वी नो दैट द कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट व्हाइल इट इज बीइंग क्रिएटेड। जैसे हम लोग उसको कंपाइल करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन हो जाता है। तो हियर फाइल नेम इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। दिस उसमें कुछ स्टेप्स आते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप लाइक क्रिएट अ फाइल स्ट्रीम object to the manage the stream using appropriate class, that is used to say the OF stream is used to create the output stream and the class F stream is used to create the input stream। okay, so and then we will initialize the file object with the desired file name। ये पर्टिकुलर फाइल नेम आप उसका तो जैसे कि यहाँ पे देखो OF stream दिया है, फिर आउट दिया है, then name of that file। okay, so that is for the output only। और एक डायग्राम है वो भी शो करता हूँ मैं। okay, so you can check in this diagram that is the two file stream working and separate files। okay, तो इसमें आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में प्रोग्राम है एंड राइट साइड में डिस्क है। तो जब भी आपका आउट फाइल यूज करोगे आप कीवर्ड इन योर कोड, इसका मतलब है आप कुछ तो लिख रहे हो, उसका आउटपुट स्ट्रीम दे रहे हो, दैट वी हैव टू राइट द डेटा टू द रिजल्ट फाइल। ओके, एंड इन फाइल मतलब वी आर यूजिंग द इनपुट स्ट्रीम इन फाइल, तो इसमें आप लोग रीड कर रहे हैं फ्रॉम द फाइल।
to create an out file and OF stream object that manage the output stream. So this object can be any valid C++ name such as O file, my file, or fout. So this statement also open the file result and attach to the output stream. Okay. So similarly, the like different in file and if stream object attached to the data files for the reading inputs. इसमें हम लोग if stream use करेंगे, then in file and the data रहेगा अपना. Okay. So these are the basic things about that. तो आपको इसमें टेक्स्ट मोड में करना है तो आपको txt मेंशन करना है जस्ट यूजिंग द आउट फाइल एंड द बाइनरी मोड में करना है. सो यू हैव टू राइट दैट if stream in the my file that iOS binary form. Okay. So in the if stream in dot open file name and उसका बाद तो कौन से मोड में आप उसको यूज कर रहे हो. ओके. देन फंक्शन दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म द स्पेशल टास्क. ओके. तो उसमें से फर्स्ट कौन सा है, एंड ऑफ द फाइल्स रहेगा, बैड रहेगा. ओके. देन फेल्स रहेगा, then is open रहेगा. That will be used taking the end of the files, then check the operation fails है क्या नहीं. Operation fails रहेगा तो वो check करेगा. Then उसके बाद checking for the file whether it is open or not, वो भी check करेगा. Okay. These are the different operations है उसके अंदर. Checking for the open file, several bytes already read, count करने के लिए है, open है कि नहीं वो check करने के लिए है. Ignore the n bytes from the files. Peek command, check the next available character will not increase the get pointer to the next. Okay. So next character check करने के लिए peek pointer use होता है. उसके बाद random access है, seek g, seek p, tell g, tell p. In this case, binary files random access is performed using this function. So they either give a set the position of getting the input points on the particular locations. Okay. So let's take one example for this, like creating a files or opening a file for the reading purpose. Okay, so you can check here. मैंने a-file.txt करके फाइल बनाया था, इसमें कोई डेटा नहीं था. Okay, तो फर्स्ट थिंग इज दैट आपको एफस्ट्रीम जो फाइल्स है वो इंक्लूड करना है, लाइब्रेरी फाइल्स है वो इंक्लूड करना है. उसके अंदर जा रहा है बहुत सारे मेथड, क्लासेस एंड फंक्शंस अवेलेबल है अंडर दिस एफस्ट्रीम क्लास. ठीक, तो उसको इनहेरिट करना है, इंक्लूड करना है इन योर करंट प्रोग्राम्स. उसके बाद एक डेटा नाम का पॉइंटर्स लिया है, सॉरी अरे लिया है, कैरेक्टर अरे, जिसमें 100 साइज लिया है हम लोगों ने. देन उसके बाद हम लोगों ने OF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट फाइल बना रहे हैं. तो ऑब्जेक्ट फाइल का नाम रहेगा आउट फाइल. ओके, तो आउट फाइल डॉट ओपन हम लोग क्या करेंगे, ओपन इज द ऑपरेशन. ओके, तो ये फाइल को ओपन करना है. उसके बाद राइटिंग टू द फाइल्स, देन एंटर योर नेम, देन यूजिंग सीन डॉट गेट लाइन. ओके, डेटा कॉमा 100. ओके, तो गेट लाइन मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करें, जो डेटा है वो हम लोग रीड कर रहे हैं फ्रॉम द यूजर जो एंटर कर रहा है. मतलब 100 कैरेक्टर तक हम लोग डेटा उसमें यूज कर सकते हैं एट टाइम इन द सेम मेथड. ओके, एंड उसके बाद हम लोग क्या करना है, वो फाइल वो डेटा को हम लोग को राइट करना है. ओके, जो डेटा हम लोग ने यूजर से लिया उसको राइट करना है यूजिंग आउट फाइल ऑपरेशन. ओके, सो दैट विल बी आर क्रिएटेड फ्रॉम द OF स्ट्रीम क्लास. ओके, देन एंटर यूजर का एज लेना है. ओके, डेटा में. एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू दैट अगेन वी विल यूज दैट सीन डॉट इग्नोर. इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ एग्जैक्ट क्या चीज है ये. उसके बाद अगेन राइट द आउटपुट डेटा, जो डेटा हम लोग ने लिया है इन एज का वो हम लोग फिर से उसमें राइट करेंगे. तो अगेन राइट इनपुट डेटा इनटू द फाइल आएगा. उसके बाद जो ओपन किया था उसको हम लोग क्लोज करेंगे यूजिंग क्लोज फंक्शन. देन ओपन अ फाइल फॉर रीड मोड. अभी रीड मोड में यूज करना है तो हम लोग 16 क्लासेस करते हैं. यहाँ पे पहला कौन सा किया था, आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट फाइल स्ट्रीम का क्लास यूज किया था. अभी हम लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं, तो रीड के लिए जस्ट इफ स्ट्रीम मतलब इनपुट फाइल स्ट्रीम यूज कर रहे हैं, दैट इज इन फाइल. तो इन फाइल डॉट ओपन ए फाइल डॉट टीएक्सटी, ये जो हम लोग ने बनाया था फाइल क्रिएट किया है तो उसको हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे. जब उसके बाद रीडिंग फ्रॉम द फाइल, तो डेटा इन फाइल्स ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे. उसका जो सीक्वेंस है और डायरेक्शन है इसका कंपैरिजन ऑपरेटर्स का, वो आप देख सकते हो तो कैसे वो रीड कर रहा है फ्रॉम द फाइल. इसके बाद उसको फिर से हम लोग को राइट करना है यूजिंग सी आउट डेटा, मतलब जो मतलब कंसोल पे भेजना है हम लोग. ओके, तो हम लोग क्या करें, मेमोरी में स्टोर था, मेमोरी से एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर था, उससे रीड करके हम लोग ने क्या किया है, हम लोग कंसोल के पास भेज दिया डेटा यूजिंग लाइन. ओके, फिर अगेन रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल्स एंड डिस्प्ले. तो नेक्स्ट वाला लाइन का डेटा रीड करेगा. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लोज करेंगे. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ इन फाइल ऑपरेशंस एंड आउट फाइल ऑपरेशन इन यूजिंग द C++ को. ओके, इसमें मैं डेटा में चेंजेस भी करूंगा.
अभी देखो ए एंड 1 2 है, मतलब प्रीवियस वाला डेटा यहाँ पे चला गया है, ओके, वो प्रिजर्व नहीं हुआ है, बट थ्रू द कोड्स यू कैन वो भी फीचर्स यूज कर सकते हैं जिसमें हम लोग ऑलरेडी डेटा स्टोर रहेगा. अगेन वी विल यूज दैट डेटा फॉर रीडिंग पर्पज. ओके, तो ट्राई दिस कोड. इसमें आप देख सकते हो कुछ ऑपरेशन भी दिए है, लाइक मोड एंड फ्लैग और उसका डिस्क्रिप्शन है. तो ओपन मेंबर फंक्शन के अंदर ये होते हैं सारे में. iOS app that append the mode, append mode में रहेगा, so all output that file to be appended to the end of the file. Okay, then iOS 8 open a file, output and move at the read write control to the end of the file, at the end of the file. Then iOS in open file for reading, iOS out open a file for writing, iOS trunc if the file already exists, its content will be translated before opening the file. Okay, मतलब वो डिलीट करना. अभी मैंने आपको रिसेंट वाला एक कोड दिखाया, तो इसमें क्या हो गया था, हम लोग नया डेटा लिखने के बाद ओल्ड वाला डेटा है वो ऑटोमेटिकली रिमूव होता है फ्रॉम द फाइल. ओके, दिस इज अवर टू फाइल, दैट इज द मेन प्रोग्राम, एंड यहाँ पे डेटा हम लोग रीड राइट कर रहे हैं, दैट इज a-file.txt फाइल. ओके, तो आप ऑफलाइन कर रहे हो तो आप डैट फाइल भी यूज कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल भी यूज कर सकते हो, जैसे आपका रिक्वायरमेंट रहेगा वैसे उस टाइप का फाइल यहाँ पे यूज कर सकते हो. दिस कोड. ओके, तो 3 प्रोग्राम हम लोग को यहाँ पे देखने हैं. तो फर्स्ट प्रोग्राम इज क्रिएटिंग ओपनिंग अ फाइल. ओके, एक फाइल क्रिएट करना है और उसको ओपन करना है. ओके, सो उसके लिए आपको एफस्ट्रीम करके क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एफस्ट्रीम क्लास, फिर उसको ओपन करना है यूजिंग st.open फंक्शन. ओके, तो क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, देन इफ चेकिंग वेदर द फाइल नेम इज एग्जिस्ट और नॉट, फाइल एग्जिस्ट है क्या नहीं वो यहाँ पे चेक करेंगे. देन फाइल क्रिएशन इज फेल, मतलब फाइल क्रिएट करना है. ओके, फिर उसके बाद सी आउट न्यू फाइल क्रिएटेड st.close एंड क्लोजिंग फाइल एंड गेट ch फंक्शन यहाँ पे आएगा. ओके, तो राइट द कोड फॉर ओपनिंग अ फाइल्स. ओके, क्रिएटिंग एन ओपन फाइल्स ऑटोमेटिक क्रिएट करना है, मतलब मैन्युअली आपको फाइल क्रिएट नहीं करना है. यहाँ पे आपको क्या करना है, थ्रू द प्रोग्राम्स आपको फाइल्स क्रिएट करना है. ठीक है, सो एग्जीक्यूट दिस कोड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नया फाइल क्रिएट हो गया है. ओके, तो फाइल नेम इज samplefile.txt. ओके, तो जो हम लोगों ने प्रीवियस a-file.txt बनाया था, अभी samplefile.txt ओपन हो गया है. सो जो हम लोगों ने नाम लिखा था वो. ओके, सो ये प्रोग्राम आपको करना है अभी. ओके, डन. देन वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट. ये हो गया क्रिएटिंग अ फाइल. अभी राइटिंग टू द फाइल. ओके, सेकंड प्रोग्राम आपको करना है राइटिंग टू द फाइल्स, जिसके अंदर सेम क्लासेस यूज करने हैं. फिर एफस्ट्रीम st क्रिएट करना है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ एफस्ट्रीम क्लास, फिर उसको ओपन करना है फाइल्स को इन द आउटपुट मोड, इन क्रिएटिंग अ न्यू फाइल whether it is exist or not. If it exists, the file creation fail. Okay, already exit मतलब ऑलरेडी बनाया रहेगा तो यहाँ पे ये होगा. ओके, फाइल क्रिएशन फेल हो जाएगा, तो मतलब वही है, मतलब फाइल क्रिएट नहीं करना है हम लोग को. एल्स पार्ट में क्या रहेगा, न्यू फाइल क्रिएटेड एंड देन जो हेलो करके है वो आपको फाइल में लिखना है. ओके, सो एग्जीक्यूट दिस कोड लाइक राइटिंग अ डेटा टू द फाइल्स. यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएटेड करके मैसेज आ गया है. इसको क्या करते हैं हम लोग, रीड करते हैं, रीड करते हैं, रन करते हैं. ओके, तो यहाँ पे सैम्पल फाइल टेक्स्ट डॉट हो गया है. देन फाइल क्रिएशन फेल्स. ओके, इसे एक बार करते हैं. ओके, न्यू फाइल क्रिएटेड, चेक वेदर द फाइल इज एग्जिस्ट.
ओके, ये फाइल क्रिएशन का ही है, न्यू फाइल इज क्रिएटेड। हम लोग को डेटा लिखने का है ना इसमें। ओके, तो राइटिंग टू द फाइल्स, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक बस एक लाइन ऐड करना है इसके अंदर। हेलो लिखना है फाइल के अंदर। ठीक है, तो येलो आ गया है यहाँ पे। तो दिस वे यू कैन राइट द, दो बार येलो आ गया। ओके, तो दिस इज अ सेकेंड ऑपरेशन फॉर राइटिंग टू द फाइल्स है। उसके बाद रीडिंग फ्रॉम द फाइल्स, फाइल से रीड करना है कोई डेटा है आपको वो, तो आपको फिर से अगेन ओपन करना है आउट के लिए इज एस टी एंड देन वाइंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी फाइल को रीड करने के लिए हम लोग ने लेफ्ट साइड का जो कंपैरिजन ऑपरेटर यो यूज किया था रीडिंग फ्रॉम द फाइल्स। ओके, बट यहाँ पे हम लोग व्हाइल लूप भी यूज करना है, मतलब यहाँ पे मल्टीपल लाइंस भी हो सकते हैं इनसाइड द कोड। ओके, उसके लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे व्हाइल लूप लेना होगा, so that we have to read the data from that files. ओके, तो दैट इज एल्स पार्ट में आएगा वो पूरा। तो उसके लिए हम लोगों ने एक व्हाइल लूप लिया है, एक वेरिएबल लिया है कैरेक्टर चेज, ना ऑब्जेक्ट सेम है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट।
यहाँ पे डेटा रीड नहीं हो रहा है, ब्लैंक आउटपुट है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। जीरो वाला। यस, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे रीड हो गया अपना ABCC मतलब एंड ऑफ द फाइल्स यहाँ पे 2 टाइम्स रन हो गया है। सो एंड ऑफ द फाइल्स यहाँ पे तक सर्च होगा वो, इसलिए उन्हें डबल टाइम प्रिंट किया है। ऐड द मल्टीपल, उसमें एक ही था कि मैंने इनपुट स्ट्रीम नहीं यूज किया था। ओके, जैसे एफ स्ट्रीम यूज कर रहा था ना, जैसे मैंने आई यूज किया इनपुट स्ट्रीम, तो वो इनपुट स्ट्रीम में ओपन होने के बाद इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ओपन हो गया। देन विल यूजिंग रीड दैट फाइल यूजिंग द व्हाइल लूप। ओके, सो एंड ऑफ द ऑपरेशन, एंड ऑफ फाइल मतलब एंड ऑफ द फाइल तक वो घूमते रहेगा जब तक वो रीच नहीं होता। जैसे एंड ऑफ द फाइल तक रीच हो जाएगा वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, परफॉर्म दिस कोड। उसके बाद लास्ट ऑपरेशन है क्लोज फाइल। इसके लिए जैसे हम लोग को ऑब्जेक्ट नेम एंड क्लोज फाइल यूज करना है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्रोग्राम में मैंने क्लोज नहीं किया था, आपको इसको क्लोज करना है तो यू हैव टू राइट जस्ट जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था आप लोगों ने शुरुआत में, उसको जस्ट कॉल करना है hp डॉट क्लोज। आज प्रोग्राम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बताया, मतलब आपको सबको बताया कि मेमोरी में एलोकेट करना स्पेस। ओके, जैसे हम लोग क्लोज फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो क्या करेगा, स्पेस एलोकेट करेगा, उसके बाद उसको रिलीज भी कर देगा। तो ओके, और जो कनेक्शन फॉर्म हुआ था बिटवीन द डिस्क फाइल एंड द डेटा एंड प्रोग्राम, वो भी यहाँ पे क्लोज होने वाला है यूजिंग द क्लोज फंक्शन। ट्राई दिस कोड। ओके, तो द नेक्स्ट इज स्ट्रीम क्लासेस। तो स्ट्रीम, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ से डेटा फ्लो होता है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डेटा रहता है, उसको हम लोग स्ट्रीम बोलते हैं। ओके, so that can be represented by the entity with a certain class. Okay, तो इसमें हम लोग stream की आउट तो stream ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। then various streams are used in represent the various type of data flow। web stream देखा है, IF stream देखा है, F stream देखा है। okay, so IOS class is the mother of all stream class। मतलब हम लोग जो IOS यूज करते हैं तो वो क्या है, mother of all stream classes, providing the bulk of the functionality will need to interact with the C++ stream। so the formatting flags, error status flags, file operation modes are the 3 modes critically function। Okay, then we will study about this formatting the functions and error status flag। Okay, and उसमें क्या करेंगे हम लोग, ये सारे file operation modes है where we address the these files later। तो इसका एडवांटेजेस क्या होता है स्ट्रीम का, सिंपलिसिटी, सिंपल टू यूज, टू वर्क विद द क्लास दैट यू विल बिल्ड, यू कैन ओवरलोड द एग्जिस्टिंग ऑपरेटर फंक्शंस सच एज
इंसर्शन, ओके, मतलब जो कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन लेस देन, उसको इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं, ओके, इंसर्शन एंड आउटपुट ऑपरेटर, ओके. So this both the operation, input and operation are the type safe and are more user friendly with the scanf and printf, okay. तो उसमें जो आईओ स्ट्रीम यूज होने वाला है, आईओ यूजिंग स्ट्रीम क्लासेस, इसके अंदर हम लोग इनपुट स्ट्रीम बोलते हैं, आउटपुट स्ट्रीम बोलते हैं. तो ई स्ट्रीम क्लास है, आई स्ट्रीम क्लास है एंड ओ स्ट्रीम क्लास इसके अंदर, ओके, दैट बिलोंग टू दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट, stream belonging to the input stream and the global output cout belonging to the output stream, okay, cout and cin, okay. So there are two types of file streams, that is input and output. The f stream input file stream and descendant of the e stream, and while the of stream output file stream is the descendant of the os stream, okay. तो यहाँ पे नीचे डायग्रामेटिकली उन्होंने हायरार्की बताया है हर एक क्लास का, कि जहाँ पे देख सकते हो ISC is the mother of all files, जिसमें e stream, f stream base, then os stream and the file buffer आता है, okay. And that will be inherited from that e stream, f stream and o stream class. तो ये वाला जो हमने डायग्राम देखा था, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंसोल, ओके, रीड करने के लिए दैट विल बी राइट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से डेटा वो लेगा, वो थ्रू द प्रोग्राम वी कैन राइट दैट डेटा इनटू दैट फाइल्स ऑन द डिस्क, ओके. So here the input and output streams are represented by using the I stream and O stream. I stand for input and O stand for output. हमेशा याद रखना है आपको. Which are derived from the iOS. So इसमें get line, read and overload extraction operators, okay, and are found to be I stream class. मतलब I stream class के अंदर ये सारे function available होते हैं, okay, input related, get line, read. I is related to the input, मतलब हम लोग कुछ input दे रहे हैं ना, तो input देने के लिए कुछ तो read होना चाहिए, get होना चाहिए, get line होना चाहिए, और कुछ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं. वैसे हम लोग लिखने के लिए while put and write as well as overload insertion function operators are found in the O stream class, okay, output related है, okay. So the multiple inheritance give the IO stream class access to both the I stream and O stream. So tool that can be open for both the input and output of the same file. Such these files can be used with the class derived from it, okay. तो उसमें different file stream classes है, detail of the file stream classes and under the IO stream with assigned the three classes that are inherited from the E stream, O stream and IO stream. So file buffer class है, उसमें the function to be read and write the file buffers, output, open the prompt and the console constant that are used for the open method of file stream, close and open are also member of that class. Then F stream base operations that are common to the file stream are supported. So this class is the base for the F stream, F stream, or F streams class. Then the open and the close function are used. Then F stream input operations are given. There are an open function to the default input mode. The function get line, read the 6G, okay, get the current pointers, tell pointer, get the current position of that pointers, p pointer, get pointers. ये हम लोग 6G and tell अभी और आगे देखने वाले हैं. जस्ट होल्ड ऑन, मैं उसके बारे में बता आपको इसका यूज क्या है. या तो 6G करके है, SEEKG, दैट मूव गेट पॉइंटर टू द स्पेसिफाइड लोकेशन रहता है, एंड द 6P मूव पुट पॉइंटर टू द स्पेसिफाइड लोकेशन, ओके. मतलब P स्टैंड फॉर पुट पॉइंटर एंड G स्टैंड फॉर द गेट पॉइंटर्स, ओके. तो दिस इज G, ये गेट पॉइंटर होता है. उसके अंदर इंस्टेड ऑफ इसके जगह पे हम लोग 6P भी यूज करते हैं. 6P का मतलब होता है पुट पॉइंटर्स, ओके, उसका स्पेसिफाइड लोकेशन बताता है. एंड टेल जी एंड टेल पी, यहाँ पे दो फंक्शन है, टेल जी एंड टेल पी. टेल जी मतलब क्या होता है, दैट गिव द करंट पोजीशन ऑफ द गेट पॉइंटर, एंड टेल पी का मतलब होता है गिव द करंट पोजीशन ऑफ द पुट पॉइंटर, ओके. जब OF stream आउटपुट ऑपरेशन आर गिवन, तो जिसमें पुट 6P, देखो टेल पी पुट पॉइंटर ना, पुट मतलब राइट करना है, राइट ऑपरेशन, राइट फंक्शन. Then F stream simultaneous input output process are supported, open with the file input mode. मतलब F stream कब यूज करना है, IO stream कब यूज करना है, I stream कब यूज करना है, और O stream कब यूज करना है, वो आपको पता होना चाहिए, ओके. तो IS क्लास के बारे में हम लोगों ने देखा है, इसमें हम लोग ये सारे फ्लैग्स है, skip WS, keep the white spaces and input, left adjusted output, okay, right justification, left justification, internal, use padding between the sign and base indicator and the numbers, convert to decimals, octals and hexadecimals, okay. So these are the flags that can be used in this iOS class.
तो इसको देखो आप ऐसे यूज कर सकते हो, cout.setf as left. This will be a left justified. Okay. ये क्या है? स्ट्रीम एरर स्टेट. ओके, तो उसमें एक और एक है, या तो जो CERR, okay, so this is called the unbuffered standard error output stream. Okay, this that will be usually specified to displaying the error message or diagnosing information. Okay, तो आपको यूजर को अर्जेंट मैसेज बताना है कि आपका एरर आ गया या वार्निंग बताना है, तो ये इसका पर्पस होता है CERR. ओके, तो दिस इज अनबफर्ड स्टैंडर्ड एरर इन आउटपुट स्ट्रीम. ठीक, तो आपको उसको यूज करना है, तो दैट कैन बी यूज लाइक दिस, CER error something went wrong. Okay, and this is the end of the file. उसके बाद ई स्ट्रीम क्लास इनपुट रिलेटेड है. तो इनपुट रिलेटेड में आपको होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स है, गेट फंक्शन है, गेट कैरेक्टर्स, गेट स्ट्रिंग, देन गेट कैरेक्टर विद डेलिमिटर्स, लीव द डेलिमिटिंग कैरेक्टर इन स्ट्रीम्स, then get string max delimiter, extract the character into the array string until the max character or the delim character, leave delimiting character strings, get lines है, extract the character into the array until the max character of the delim characters, extract delimiter character. Okay, ये सारे operations है that will be used for the eStream classes में, the input related है. और stream class के related क्या क्या function रहेंगे? That is a formatted insertion for all basic overloaded types, putc, flush, write, पोजीशन, टेल पी. ओके, जहाँ पे इनपुट रिलेटेड था वहाँ पे गेट पी था, यहाँ पे आउटपुट रिलेटेड और टेल पी है, दैट इज द पोजीशन ऑफ अ फाइल पॉइंटर इन अ बाइट. ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ दैट स्ट्रीम क्लास, जिसके अंदर OF स्ट्रीम यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. यूजिंग ऑब्जेक्ट दैट वी कैन क्रिएट अ फाइल्स, राइटिंग टू दिस फाइल्स एंड इसको क्लोज करेंगे. ओके, so this sentence will be written in this abc.txt file. This is a very simple example. So this is an example. देखो abc.txt file बन गया, writing this to the files. Okay, this is an example. Try this examples. Very simplest one using the OF stream class. तो फाइल को ओपन करना है, कौन सा फाइल क्रिएट करना है आपको, उसका नाम रहेगा, फिर उस पर क्या डेटा लिखना है उसके ऑब्जेक्ट को हम लोग कर सकते हैं. ओके, यूजिंग द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर. ओके, आउटपुट एक्सट्रैक्शन, उसको बाद के बाद में कनेक्शन क्लोज करवाना है. दिस इज सिंपलेस्ट वन, 4 लाइन का कोड है. उसके बाद रीडिंग द प्रोग्राम है. अभी जो हम लोगों ने लिखा है, राइट किया है फाइल में, उसको रीड करना है. दैट कैन बी यूज्ड एज इनफाइल ऑपरेशंस. ओके, इनफाइल क्लास में यूजिंग द लेफ्ट इंसर्शन ऑपरेशन ऑपरेटर. ठीक, तो आपको उसको रीड करना है एंड दैट कैन बी स्टोर इन द स्ट्रिंग, और उसको आपको राइट करना है. The next topic is the file pointer and their manipulation. So each file has 2 associated pointers known as the file pointers. One of them is called the input pointers, or you can say the get pointer. Another is called the output pointer, is called the put pointers. Okay, so we can use this pointer to move through the files while reading and writing. So the input pointer is used for reading the content of the given file location, and output pointer is used for the writing to the given file location. So each time an input and output operation takes place, the appropriate pointers is automatically advanced. Okay, तो उसमें एक एग्जांपल है, जस्ट आई विल शेयर विद यू. डायग्राम में आपके पास शेयर करता हूँ. Yes. So you can look at in the diagram. The first will be the open for reading only. जब भी आपका इनपुट पॉइंटर रहता है, उसका जो पॉइंटर रहता है वो फर्स्ट अल्फाबेट पे होता है, दैट इज हेलो वर्ल्ड रहेगा तो एच पे रहेगा. एंड आउटपुट पॉइंटर रहेगा, दैट विल बी ओपन इन द अपेंड मोड. ओके, तो अपेंड करने के टाइम पे आपका पॉइंटर, आउटपुट पॉइंटर राइट हैंड साइड में होता है. ओके, एंड ओपन फॉर द राइटिंग ओनली, दैट विल बी लाइक पॉइंटेड ऑन द एम्प्टी लोकेशंस. So when we open the file in read only mode, the input pointer is automatically set at the beginning so that we can read the file from the start. Similarly, when the open file for the writing only mode,
the existing content are deleted and the output pointer is set at the beginning. So this is enable us to write the file from the start. So in case we want to open a file for existing file to add the more data, the file is open in the append mode. Append mode में आप यूज करोगे, देखो हम लोग ने प्रीवियस वाला एक append mode का एक एग्जांपल देखा था, तो उसमें क्या हो रहा था, डेटा अपेंड हो रहा था, मतलब नेक्स्ट लाइन पे स्टोर हो रहा था. कुछ ऐसे प्रोग्राम भी थे हम लोग के जिसमें हम लोग वो फिर से रन करते थे सेम कोड अगेन एंड अगेन, तो हम लोग का जो ओल्ड डेटा था वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता था. ओके, so this is the example of this kind of concept. So this move the output operation pointer to the end of the file. Okay, वो diagrammatically यहाँ पे दिखाया गया है with the help of action on file pointers while opening a file. तो उसको आपको पॉइंटर्स में लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज फाइल एफ ओपन फंक्शन. तो यहाँ पे स्टार आएगा, एफ ओपन, देन कांस्टेंट कैरेक्टर फाइल नेम आएगा, एंड कौन से मोड में यूज करना है. जैसे उसको क्लोज करना है तो एफ क्लोज यूज करना है. देन द एफ क्लोज फंक्शन हैज अ प्रोटोटाइप इंडिज एफ क्लोज फाइल देन पॉइंटर साइड. उसके बाद है रैंडम फाइल एक्सेस, रैंडम फाइल एक्सेस. So random file access enable us to read and write any data in our text file. In the random access, we can quickly search for data, modify the data, and delete data. Okay, so इसमें fseek and random access आगे वगैरह ऑपरेशन यूज होते हैं. So random access read and write operation using stream with the help of fseek or seekg. So which is a set of position indicator is the prototype is shown here. Like उसमें आपको बताना है तो integer fseek, उसके बाद file pointers आएगा, then long number bytes and the integer origin. Okay, so fp मतलब file pointer होता है, that is written by the call of f1. Num byte is the number of bytes from the origin that will become a new current position. Okay, and it become a new current position and origin is one of the macros. तो रैंडम फाइल एक्सेस में क्या होता है, लाइक अपडेट मिलता है, अपडेट रिगार्डिंग लाइक डिस्प्लेइंग द कंटेंट ऑफ अ फाइल रहता है, मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग आइटम होते हैं, एडिंग अ न्यू आइटम, डिलीटिंग एन एग्जिस्टिंग आइटम, दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दिस एंड ऑफ रैंडम एक्सेस. ओके, तो उसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हो लाइक इन्वेंट्री का, जिसमें आप नाम, कोड, कॉस्ट लिख सकते हो. गेट डेटा में वैल्यूज यूजर से ले सकते हो, पुट डेटा में वही आप सेट कर सकते हो विद मैनिपुलेटर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया था इन द फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स अबाउट द मैनिपुलेटर, दैट इज setw एंड ll. ओके, वो भी अभी हम लोग थोड़ा देखने वाला एग्जांपल. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का. उसके बाद यूजिंग दैट fstream क्लास, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हम लोग यूज कर रहे हैं. इन दैट यूजिंग यू कैन यूज दैट iOS फाइल, देन उसके बाद seekg पॉइंटर्स, ओके, getg, मतलब ये सारे फंक्शन यूज करके हम लोग इसके ऊपर प्रोग्राम बना सकते हैं अबाउट दिस फाइल पॉइंटर. ओके, उसमें और एक चीज है, दैट इज द फाइल मैनिपुलेटर्स, जो हम लोगों ने देखा था. इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग. तो आईओ मैनिप करके जो लाइब्रेरी फाइल से हम लोग ऐड करने वाले हैं यहाँ पे इनसाइड दिस सेट विद ऑपरेटर्स, और एक एग्जांपल देखने वाले हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया था इन द फर्स्ट 2 लेक्चर. ओके, so this is an example जिसमें IO stream यूज करना है एंड IO मैनिप यूज कर सकते हो आप और दिस setw एंड ll सेगमेंट के लिए. दिस इज काउट. तो ज्यादा कंटेंट है इस प्रोग्राम में, इसके वजह से क्या होता है, आपको आउटपुट देखने के लिए बेहतर रहेगा. तो सेट विड्थ 5 है, देखो 50 में किया है. उसके बाद डबल टर्म सम 0 फॉर लूप है. यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया है. उसके बाद एक वेरिएबल लिया है 2, इस फॉर लूप लिया है.
फिर टर्म दिया है, सब बिजनेस लॉजिक यूज किया है, मतलब यहाँ पे जब कंसेप्ट है मतलब, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और एक लाइन आएगा, दैट फॉर द सेट डब्ल्यू, सेट प्रेसिजन मतलब जो पॉइंटर्स है, तो सेक्शन फ्लैग साइंटिफिक टर्म्स के रिलेटेड भी रहेगा, तो भी आप यूज कर सकते हो। Okay, after running this code, नंबर लाइन पे इसको इधर आ गया है। Set precision 4. Shall not declare in the scope. And L होना चाहिए, वो वन हो गया है। Okay, so this is the way the program is. तो इसमें विड्थ दिया है, देखो हर एक इसमें विड्थ दिया है 1 2 3 नंबर्स के बीच में सेट विड्थ। तो फर्स्ट 5 विड्थ दिया है, उसके बाद सेट विड्थ फॉर 15। ओके, इसके मतलब जो स्पेस लेफ्ट किया है, ओके, इसके बीच में स्पेस दिया है, एंड सम ऑफ टर्म्स, ओके, डबल टर्म यूज किया है, एंड यूजिंग पॉइंटर्स टर्म, एंड उसका ये दिया है सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म, और जो आउटपुट दे रहा है दैट विल इन द फॉर्म ऑफ सेट विड्थ ऑफ एन, एन का वैल्यूज, ओके, दैट इज 1 2 3 4 5, देन सेक्शंस सेट iOS फ्लैग्स, ओके, दैट साइंटिफिक फ्लैग रहेगा वो यहाँ पे दिए है, एंड द टर्म्स कौन सा है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ओके, एंड देन रीसेट iOS फ्लैग है, दैट दिया साइंटिफिक रिलेटेड है, दैट इज E-01 वगैरह दिया है, एंड द साइंटिफिक के लिए उन्होंने लास्ट में देखो आपको साइंटिफिक इन द फॉर्म ऑफ लाइक पॉइंटर्स सोल्यूशन दिया, मतलब डबल वैल्यूज है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स में यहाँ पे शो किया है, ओके, सम उसका सारे इसका। तो एक्चुअली इसका मैनिपुलेटर्स का यूज वही होता है कि वी हैव टू यूज दिस एंड एंड सेट विड्थ ऑपरेटर्स टू फॉर्मेट डाउन, ओके, so this manipulator has the same functionality and the new line character जैसे होता है, जैसे set width, that is a manipulator set the minimum filled width on output, मतलब आउटपुट प्रिंट करते वो थोड़ा सा फील्ड वो वहाँ पे यूज करता है, ओके। उसका सेट फिल मैनिपुलेटर भी है, दैट इज यूज टू फिल द यूज आफ्टर द सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर,
If the value does not entirely fill in a field, then the character specified in the set field argument in the manipulator is used filling the fields. Okay. और फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे सेट फील्ड्स डॉलर दिया है, मतलब जहाँ पे आपका 10th विड्थ रहेगा, मतलब टोटल 10 टाइम्स यहाँ पे आपका डॉलर प्रिंट होने वाला है, उसके बाद आपका वो आउटपुट आएगा, जो भी एक्चुअल वैल्यू वो प्रिंट होगा। उसके बाद सेट प्रेसिजन मैनिपुलेटर्स इसलिए यूज होता है प्लॉटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट प्रेसिजन मैनिपुलेटर यूज होता है, जो भी हम लोगों ने प्रोग्राम में देखा है। This is an example set precision. So this will give the pointer representation. आपको 3 तक बढ़ाना है वैल्यूज को, तो 0 पॉइंट आपका वैल्यू रहेगा एक्चुअली, तो उसके आगे 3 डिजिट बढ़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे सेट प्रेसिजन इज इक्वल टू 3 दिया है विद द एंड ऑफ दैट स्टेटमेंट। ओके, एंड आपको साइंटिफिकली यूज करना है तो इसके लिए भी आप यूज कर सकते हो, तो इसके लिए आपको साइंटिफिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो 0.1 को। यू कैन ट्राई दिस एग्जाम्पल एज एन होमवर्क। ठीक है, this is all about the file system and summary. तो इसमें important question है from the chapters exam point of view, theory exam point of view. What is the stream? Explain the different types of stream. जो मैंने hierarchy बताया था, class hierarchy, वो पूरा करके जाओ tables, उसमें आपको diagram में निकालोगे, so you can remember that all the files, that is F stream, O stream, I stream, O stream, each streams, then file streams। ओके, ये सारे क्लासेस और उसके फंक्शन, देन फाइल मोड ऑपरेशन के फंक्शंस कौन से वो। ओके, उसके बाद टेक्स्ट फाइल बाइनरी फाइल में डिफरेंस क्या है वो देखना है, देन रीड द फाइल थ्रू द C++ प्रोग्राम, राइट द टेक्स्ट फाइल, मतलब ये 3-4 प्रोग्राम करके रखो, फाइल क्रिएट करना, रीड करना, राइट करना और क्लोज करना। ओके, ये 4 प्रोग्राम करोगे तो आप एनी प्रोग्राम यू कैन राइट। ओके, तो लास्ट एक 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन द text files and binary files. So text files can be easily transferred from one computer system to another. So binary file cannot be easily transferred from one computer system to another due to variation in the internal variations, that is representation of which vary from computer to computer. ये ASCII फॉर्मेट में यूज होता है, ये बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, that is 0 and 1 में। टेक्स्ट फाइल इज readable, modifiable because content written in the text file is human readable, बट बाइनरी फाइल में आप डेटा रीड नहीं कर सकते हो। ओके, सो द फाइल आर नॉट इजीली रीडेबल एंड मॉडिफाइबल बिकॉज इट कंटेन द रिटर्न इन द बाइनरी। टेक्स्ट फाइल का इशू क्या होता है, पोर्टेबिलिटी इशू होता है, बट जो बाइनरी फाइल होता है बट इज इजीली पोर्टेबल है। ओके, देन उसके बाद डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल होता है, एनी फाइल बाय द डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल, एंड बाइनरी मोड रहेगा तो iOS कोड रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड बाइनरी कीवर्ड आपको मोड यूज करना है for using the binary files while opening them. Okay, then उसके बाद errors in the actual files can be easily recognized and eliminated. Error in binary files corrupt the files and it is not easily readable. So these are the more differences are available. Around 10 differences आप देखिए for the 5 marks के लिए। Okay, then new line characters वगैरह यूज कर सकते हो आप। Okay, रीड कर सकते हो फाइल को, बट बाइनरी फाइल में वैसा नहीं है। So no such a conversion from new line to carriage return line field combination is done. Okay, then स्पेशल कैरेक्टर यूज किया है इन द टेक्स्ट फाइल, 26 ASCII कोड्स यूज किए हैं एंड ऑफ द फाइल्स, so this character signal the end of the file to the program, then it is encounter, and they are in the binary file में वो पर्टिकुलर जैसा वही कंसेप्ट नहीं होता है to reaching that end of the files. Okay, there is no such a special character. Then text file are used to store the data more user friendly, binary files are used to store the data more compactly. तो ये TXT and RTF फॉर्मेट में होता है, and that can be have an application defined extension. तो कोई भी एप्लीकेशन रहेगा तो डिपेंड कर सकता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ अ फाइल दैट ओपन iOS में आउट में किया है। ठीक है, तो ये भी डिफरेंसेस है, मैं इसका लिंक आपको साथ शेयर करता हूँ, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। Just hold on, I am sharing that code to you. ठीक है, so इसका भी लिंक आपको शेयर करता हूँ, टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स का डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड बाइनरी। ये 5 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है, तो अपना यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो गया है C++ का। एक लास्ट लेक्चर्स बाकी है, उसमें हम लोग सारे कोड का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ऑल प्रोग्राम्स जितने भी कंटेंट है, इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हम लोग ट्राई करेंगे फ्रॉम दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। सो एक रिव्यू लेते हैं सिर्फ फ्रॉम द सिलेबस, क्या क्या कंप्लीट हुआ है। तो टोटल दो मॉड्यूल्स थे, जिसमें फर्स्ट मॉड्यूल में 4 चैप्टर्स थे, जिसमें बेसिक था, क्लासेस ऑब्जेक्ट थे, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म, वर्चुअल फंक्शन एंड द वर्किंग विद द फाइल्स। ओके, सो एक्स्ट्रा भी हम लोग ने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं ड्यूरिंग द लेक्चर्स। ओके, थैंक यू एवरीवन।